ہمیں جو مشکل وقت آئے گا اور وہ آئے گا مئی، مڈل آف مئی سے اینڈ آف مئی تک. مشکل وقت کا کیا مطلب یہ کہ جو 3-4% مریض جو کورونا کی وجہ سے یا ان کی زیادہ ہے یا ان کو کوئی بیماری ہے، ان کی جان خطرے میں جاتی ہے، تو ان کو ضرورت پڑتی ہے ہاسپٹلائزیشن کی. ضابطۂ کار پر عمل نہ ہوا تو مساجد بند کر دیں گے. وزیر اعظم عمران خان نے صاف صاف بتا دیا. کہا مکمل لاک ڈاؤن کر لے تب بھی کورونا نہیں رک سکتا. ہمیں اس وائرس کے ساتھ رہنا ہوگا. مئی کے وسط میں صورتحال خطرناک ہو سکتی ہے. مکمل لاک ڈاؤن کے بجائے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جانب بڑھنا ہوگا. آہستہ آہستہ کاروبار کو کھولنا ہوگا. چھوٹے کاروبار کو چلانا ہوگا. کوشش ہے شرح سود مزید کم کر دی جائے. وزیراعظم عمران خان کا ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. وزیراعظم کو داخلی اور خارجی چیلنجز اور کورونا کے اثرات پر بریف کیا گیا. وزیراعظم نے ISI کی خدمات اور قربانیوں کو سراہا. گفتگو کرتے ہوئے کہا ملک کی سلامتی کے تحفظ کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی. دورے کے دوران آرمی چیف، وفاقی وزراء اور پاکستان میں کورونا وائرس تیزی سے پھیلنے لگا. ایک ہفتے میں مقامی منتقلی کی شرح 24% اضافے کے ساتھ 79% تک پہنچ گئی. اب تک 10,815 افراد میں وائرس کی تصدیق. اموات بھی 228 ہو گئیں. پنجاب 4,500 کیسز کے ساتھ پہلے نمبر پر، 3600 سے زائد کیسز کے ساتھ سندھ کا دوسرا نمبر. آج جس طریق سے گراف بڑھا، 10,000 سے ہمارے لوگ زیادہ یہاں پہ اب افیکٹ ہو گئے ہیں. یہ ہزاروں میں نہیں ہے. اللہ معاف کرے، یہ معاف کرے، اس کی تعداد بہت زیادہ ہے. کہتے بڑا عجیب لگے گا اگر کہیں کہ یہ لاکھوں میں ہے، لیکن اس سے یہ کمتر قطعی طور پہ نہیں ہے. پاکستان میں کورونا متاثرین ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں. صدر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ڈاکٹر اشرف نظامی کی پریس کانفرنس. پنجاب حکومت پر سیمپلنگ میں بددیانتی کرنے کا بھی الزام. کہا حکومت مکمل لاک ڈاؤن کرے، مساجد کھولنے کے فیصلوں پر نظر ثانی کرے. ایسا نہ ہو کہ ہمیں سڑکوں پر علاج کرنا پڑے. لاک ڈاؤن کے باوجود شہری گھر میں بیٹھنے کو تیار نہیں. گلیوں اور بازاروں میں عوام کا رش. اہم شاہراہوں پر بھی ٹریفک بڑھ گیا. ناکوں پر موجود سیکیورٹی اہلکار بھی روکنے میں ناکام. WHO نے لاک ڈاؤن میں نرمی خطرناک قرار دے دی. ڈاکٹر ٹیڈروس کہتے ہیں کچھ شہروں میں وائرس دوبارہ سر اٹھا رہا ہے. بیشتر ممالک میں مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ملاقات. پنجاب میں کورونا وائرس کی صورتحال پر تبادلہ خیال. عثمان بزدار کا ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کے لیے شہداء پیکج کا اعلان. کہتے ہیں پنجاب جلد یومیہ 10,000 کورونا ٹیسٹ کی صلاحیت حاصل کرنے کا. سندھ میں کورونا مزید 4 زندگیاں نگل گیا. صوبے میں اموات کی تعداد 73 ہو گئی. وزیر اعلیٰ سندھ کا ویڈیو پیغام. کہا کراچی یونیورسٹی میں ملک کی سب سے بڑی لیب قائم کر دی. یومیہ 800 ٹیسٹ ہوں گے. 3 ہفتوں میں یہ صلاحیت 2400 ہو جائے گی. ملک میں رمضان مبارک کا چاند نظر نہیں آیا. پہلا روزہ ہفتہ 25 اپریل کو ہوگا. چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان کی پریس کانفرنس. کہا رمضان میں ہر مسجد کے دروازے پر سینیٹائزر گیٹ نصب کیا جائے. سماجی فاصلے اور صفائی کے انتظامات کو یقینی بنایا جائے. ملائیشیا، انڈونیشیا اور فلپائن سمیت مشرق بعید کے کئی ممالک میں رمضان کا چاند نظر آ گیا. مصر میں بھی کل پہلا روزہ ہوگا. بھارتی ریاست کیرالہ کے مسلمان بھی کل پہلا روزہ رکھیں گے. سعودی عرب میں بھی چاند نظر آ گیا. UAE اور دیگر عرب ممالک میں بھی آج چاند نظر آنے کا امکان. دفتر خارجہ کہتی ہیں بھارت کورونا کی آڑ میں کشمیریوں اور مسلمانوں کو نشانہ بنا رہا ہے. اسلاموفوبیا کی مہم کو مودی سرکار کی سرپرستی حاصل ہے. وائرس سے جاں بحق 25%، 70 سال سے زائد اور 28% 60 سال سے اوپر ہیں. وزیر صحت خیبر پختونخوا تیمور سلیم جھگڑا کی پریس بریفنگ. کہا ٹیسٹ کروانے والے 12% مریضوں میں وائرس کی تصدیق ہو رہی ہے. آزاد کشمیر میں لاک ڈاؤن میں مزید 4 ہفتوں کی توسیع.
वज़ीर आज़म राजा फारूक कहते हैं हफ्ते में 2 दिन जुमा और मंगल को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। मुस्तस्ना दुकानें सुबह 8 से शाम 4 तक खोली जा सकेंगी। मसाजिद के हवाले से तयशुदा ज़वाबित पर अमल दरामद करवाया जाएगा। कराची में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार ताजिर अदालत में पेश। 6 ताजिरों का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सदर शर्जील गोपलानी का यकुम रमजानुल मुबारक से तमाम मार्केट्स खोलने का ऐलान। पेशावर में लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी पर पुलिस का क्रैकडाउन। जबरदस्ती खुलने वाली कई दुकानें सील। दर्जनों ताजिरों समेत 384 अफराद गिरफ्तार। कराची गुलशन अखबार में कायम इम्तियाज सुपर स्टोर फिर सील। इंतजामिया ने समाजी फासले और पार्किंग का ख्याल नहीं रखा था। विफाक का कोरोना मामले पर सिंध हुकूमत पर सियासत का इल्जाम। शहबाज गिल कहते हैं कोरोना आलमी मसला है, इस पर सियासत अफसोसनाक है। वजीर इत्तलात सिंध का जवाबी वार, कहा मुराद अली शाह की कारकर्दगी इनसे हजम नहीं हो रही, इसीलिए इस तरह के इल्जामात लगाने का सिलसिला शुरू किया गया। मरियम औरंगजेब का मीडिया के लिए खुसूसी पैकेज देने का मुतालबा। कहती है हुकूमत ने अब तक सहाफियों के लिए कुछ नहीं किया। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का जवाबी बाउंसर। कहा लीगी क़यादत किसी भी मौके पर चालाकी और अय्यारी का मौका हाथ से जाने नहीं देती। आटा और चीनी स्कैंडल के फॉरेंसिक ऑडिट में नए इंकाशाफात। मुअत्तल एडिशनल डायरेक्टर का DGFIA को खत। कहा तहकीकाती रिपोर्ट को मजबूत बनाने के लिए FBR और SECP से डेटा मांगा। मुझसे कहा गया कि FBR से डेटा मांग कर अच्छा नहीं किया गया। मुल्क में रमजान से पहले ही महंगाई का चांद नजर आ गया। सब्जियां और फल गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गए। कीमतों में 20 से 25% इजाफा। दालें और मुर्गी का गोश्त भी महंगा हो गया। खजूरों के दाम भी बेलगाम। कोरोना वायरस ने दुनिया भर की मईशतों को हिला दिया। पाकिस्तान में भी वायरस के बाइस मुआशी तरक्की कम होगी। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स की रिपोर्ट। कहा पाकिस्तान की मईशत 1.5% मनफी रहेगी। 2021 में बहाली के बाद शरह 2% हो सकती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी। 100 इंडेक्स में 386 पॉइंट्स का इजाफा। 32,850 पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता। डॉलर 159 रुपए 50 पैसे का हो गया। I'm really grateful to चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब के कहने के मुताबिक 1 घंटे के अंदर मेडिकल टीम मेरे घर पे आके मेरा और मेरी वाइफ का टेस्ट ले लिया है। और साबिक टेस्ट क्रिकेटर सादिक मोहम्मद में कोरोना की अलामात। वजीर आला सिंध की हिदायत पर महकमा सेहत ने घर जाकर सादिक मोहम्मद और अहलिया का सैंपल ले लिया। टेस्ट की रिपोर्ट 24 घंटों में आने का इम्कान। अस्सलामुअलैकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रिजवी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान में रमजान मुबारक का चांद नजर नहीं आया। मुल्क में पहला रोजा बरोज हफ्ता 25 अप्रैल को होगा। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने बाकायदा ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मसाजिद में आने वाले लोग SOPs पर अमल करें। हर मस्जिद के दरवाजे पर सैनिटाइजर गेट नस्ब किया जाए। समाजी फासले और सफाई के इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। मुल्क में पहला रोजा बरोज हफ्ता 25 अप्रैल को होगा। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मुनीबुर रहमान मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने बाकायदा ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मस्जिद में आने वाले लोग SOPs पर अमल करें। और बुलेटिन में अब बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान के तशवीशनाक बयान की, जो कहते हैं कि मुल्क भर में कोरोना वायरस खतरनाक सूरत इख्तियार कर सकता है। उन्होंने खबरदार कर दिया कि मई का महीना मुश्किल तरीन होगा। एहसास टेलीथॉन प्रोग्राम के दौरान गुफ्तगू में उनका कहना था कि उलमा से 20 नुकात पर मुआहदा हो गया है, जिस पर अमल दरामद उनकी जिम्मेदारी है। अगर इसकी खिलाफ वर्जी की गई तो मसाजिद को बंद करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि छोटी दुकानें खोलने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन करना होगा। वक्त आ गया है कि आवाम खुद एहतियात करें।
में बंद हैं। इस वक्त हम आपको अपडेट कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान ने तशवीश जाहिर कर दी। उनका कहना है कि मुल्क भर में कोरोना वायरस खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। उन्होंने आगाह किया कि आने वाला महीना इंतहाई मुश्किल साबित हो सकता है। ये बात आज उन्होंने एहसास टेलीथॉन ट्रांसमिशन के दरमियान कही। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के आर्मी चीफ के हमरा ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। वज़ीर आज़म को मुल्क के दाखिली और खारजी मुहाज़ों पर दरपेश चैलेंजेस के साथ कोरोना के असरात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर का दौरा। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा भी वज़ीर आज़म के हमरा। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को दाखिली और खारजी मुहाज़ों पर दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को कोरोना के असरात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की सलामती, सालमियत और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने आला रियासती एजेंसी ISI की खिदमत। पाकिस्तान में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। एक हफ्ते में मुकामी मुंतकली की शरह में 24% इजाफे के बाद 79% तक पहुंच गई। मजीद 4 अमवात के बाद मुल्क भर में हलाकतों की तादाद 228 हो गई है। अब तक 10,815 अफराद इस मौलिक वायरस से मुतासर हो चुके हैं। पंजाब में 4,590 और सिंध में 3,671 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। एक हफ्ते में मुकामी मुंतकली की शरह में 24% इजाफा और 24% इजाफे के बाद अब शरह 79% तक पहुंच गई है। कोरोना से बचना है तो लॉकडाउन पर अमल दरामद नागुज़ीर है। ये बात बार बार समझाने के बावजूद लोग घरों में बैठने को तैयार नहीं। आज भी घरों से बाहर निकले और समाजी फासले के अहकामात को पैरों तले रौंद डाला। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए PMA के सदर डॉक्टर अशरफ निजामी ने कहा कि हुकूमत सऊदी अरब, दुबई और तुर्की समेत दीगर मुस्लिम ममालिक की तर्ज पर फैसले करे। पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त अमेरिका से भी खराब है। हुकूमत ऐसे फैसले ना करे कि डॉक्टरों को इलाज सड़कों पर करना पड़े। कि जो सऊदी गवर्नमेंट हुकूमत ने फैसले किए हैं, जो दुबई की गवर्नमेंट ने फैसले किए हैं, जो टर्किश गवर्नमेंट ने फैसले किए हैं, जो मलेशिया ने फैसले किए हैं, जो इंडोनेशिया ने एज अ मुस्लिम कंट्रीज जो फैसले किए हैं, हमें भी पाकिस्तान को उन्हीं फैसलों के साथ चलते रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो है उसको इस्टेब्लिश करना होगा। हमें PMA के सदर ने हुकूमत और उलमा से नमाज तरावी के हवाले से किए जाने वाले मुआहदे पर नजरसानी का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि नमाज तरावी के दौरान समाजी फासले के SOPs पर अमल दरामद करना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान को तजुर्बा गाह न बनाया जाए कि तरावी और नमाज ये मस्जिद के अंदर नहीं होना चाहिए। द रीजन बीइंग कि हम लोग वो जो उन्होंने बनाया कि 6-6 फुट के फासले रखेंगे, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, वो होने वाले नहीं है। लिहाजा डॉक्टर अशरफ निजामी का यह भी कहना था कि कोरोना का अभी तक कोई इलाज नहीं है। इससे बचने का वाहिद तरीका एहतियात और सिर्फ एहतियात है। सईद बलोच, आज न्यूज़, लाहौर। कोरोना वायरस लंबे अरसे तक रहेगा। सरबराह आलमी इदारा सेहत ने वार्निंग दे दी। कहा बेशतर ममालिक में मरीजों की तादाद बढ़ रही है। कुछ मुकामात पर वायरस दोबारा सर उठा रहा है। डॉक्टर टेड्रोस ने तेजी से बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार किया और लॉकडाउन में नरमी खतरनाक करार दे दी। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि कोरोना वायरस सेहत आम्मा की इमरजेंसी से कहीं ज्यादा है। यह एक मुआशी और इंसानी बहरान है जो तेजी से इंसानी हुकूक का बहरान बन रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की। सूबे में कोरोना वायरस की रोकथाम के हवाले से इक़दामात, सनती अमल की रवानी, खुसूसन हुकूमत की जानिब से खोली जाने वाली सनतों में हिफाजती तदाबीर को यकीनी बनाने के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात के दौरान ज़ख़ीरा अंदोज़ी के तदारुक और रमज़ान के हवाले से किए जाने वाले मुख्तलिफ इक़दामात पर भी बातचीत की गई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कोरोना के मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए शोहदा पैकेज का ऐलान कर दिया। कहा कि पंजाब जल्द रोजाना 10,000 कोरोना टेस्ट करने की सलाहियत हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा कि फंड की पाई पाई हकदारों तक पहुंचाएंगे।
वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से पंजाब हाउस इस्लामाबाद में सेनेटर सरफराज बुगटी ने मुलाकात की। मुल्क में कोरोना की वजह से पैदा होने वाले हालात पर तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर वजीर आला पंजाब ने कहा कि पंजाब जल्द रोजाना 10,000 कोरोना टेस्ट करने की सलाहियत हासिल कर लेगा। तमाम सूबे भर में क्वारंटीना आइसोलेशन सेंटर्स फील्ड अस्पताल कायम किए जा चुके हैं। दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज अहमद ने लाहौर में मुलाकात की और चीफ मिनिस्टर फंड बराए कोरोना कंट्रोल के लिए 30 लाख रुपए का चेक पेश किया। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जारी किए गए ट्वीट में कहा, मुल्तान और डेरा गाजी खान के तमाम डॉक्टर्स ने कोरोना को शिकस्त दे दी। डेरा गाजी खान के 12 और निश्तर अस्पताल मुल्तान के 27 डॉक्टर्स मुकम्मल सेहतियाब हुए। कोरोना के मरीजों के इलाज के दौरान जहां बाग होने वाले डॉक्टरों या पैरामेडिकल को 40 से 80 लाख का शोधा पैकेज दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध में मजीद 298 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। सिंध में कोरोना से मजीद 4 अमवात हुई हैं। सिंध में मुतासरीन की तादाद 3,671 और अमवात 73 हो गई। पिछले 24 घंटों में 298 और पॉजिटिव आए हैं। टोटल 3,671 पॉजिटिव केसेस सुबह सिंध में आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 4 अफराद वफात पा गए कोरोना की वजह से और इस तरीके से ये टोटल तादाद 73 हो गई उन लोगों की जो कोरोना वायरस की वजह से वफात पा चुके हैं। हमने पाकिस्तान की सबसे बड़ी बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लिनिकल एंड बायोलॉजिकल रिसर्च में कायम की है और ये इंशाल्लाह ताला आज से ऑपरेशन आ गई है। इस वक्त इसकी कैपेसिटी 800 है मशीन्स जो PCR मशीन्स जो रखी हुई उसके हिसाब से और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मुझे उम्मीद है पूरी के 2 से 3 हफ्ते में ये 2400 टेस्ट पर डे करेगी। कल सिंध भर में दोपहर 12 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक सख्त लॉकडाउन होगा। सिंध हुकूमत ने शहर